Hello, aspirants. Welcome back to Super Kalam. I am your mentor, your teacher, your guide, Arpita Sharma. And as our weekend ritual, we are covering the daily news analysis. अब ये daily news analysis बहुत important है because today we are going to cover the most important, the Hindu and the Indian Express articles, and we are going to summarize it. Now, the point is there is also a test from this week's current affairs in the description box of this video. The point is not you would be saying, ma'am, this article is missed, that article is missed. मिस कुछ नहीं हुआ है. जो भी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं बाकी, वो हम डेली मेंस क्वेश्चन में कवर करते हैं ऑन अ टेलीग्राम कम्युनिटी. Rest of the important articles are covered on Sundays, and those are here in front of you. So let's get started. The first very important article, Odisha braces for Dana, rescue relief forces kept ready. As we all know that Odisha government has deployed the disaster response forces. It has started preparation for the evacuation of people in the coastal districts. Why? Because of incoming cyclone Dana. Even it was projected and predicted by satellites who were tracking cyclone Dana since October 20th. इसरो ने भी ये बात बोली है कि काफी पहले से इस साइक्लोन को ट्रैक किया जा रहा था. अब यहाँ पर ना काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं बिकॉज यूपीएससी में प्रीलिम्स में इफ यू हैव सीन दे आस्क क्वेश्चंस ऑन साइक्लोन. अब साइक्लोन क्या है? रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन ये होता है अराउंड अ लो प्रेशर एरिया, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन. इनवर्ड होता है. साइक्लोन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, टेम्परेट साइक्लोन हो गया. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फेयर में बनेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. टेम्परेट साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, राइट? So these are the pointers that you have to keep in mind when you are preparing this topic, because prelims में and even in mains questions cyclone के ऊपर direct static questions are asked. I'm going to give you one homework. The homework is you have to tell me the conditions for the formation of cyclones in the comment section. कौन से ऐसे conditions हैं जब cyclones की formation होती है? What are the conditions of formation of cyclones? Okay, let me know in the chat section, in the comment section. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब यहाँ पर आप देखोगे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साइक्लोन दाना की जब हम बात करते हैं ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट इज द थर्ड साइक्लोन विच हैज बीन फॉर्म्ड इन द नॉर्थ इंडियन ओशन. ओके, बेसिकली लैंडफॉल की अगर हम बात करें आफ्टर साइक्लोन रीमल, दिस इज द सेकंड साइक्लोन विच हैज मेड अ मैसिव लैंडफॉल. एंड ये जो नाम है साइक्लोन, यू ऑल नो दैट दीज नेम्स आर गिवन बाय डिफरेंट नेशंस, राइट? So this time cyclone Dana name has been given by Qatar. Okay, in Arabic it means generosity. तो ये important aspect हो जाता है आपका prelims का. ठीक है. Now another important aspect when we talk about ISRO statement that they had been monitoring and tracking cyclone Dana since October 20. कैसे track कर रहे थे? Through the satellite EOS-06. ये बहुत important है. I will be sharing the class notes also, don't worry, but this is important. That is why I wanted all of you to note it down. Okay. दूसरे आर्टिकल पे आते हैं. अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. द न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू हैज बीन you can say inaugurated or brought forward by our chief justice of India. अभी आपने देखा होगा क्रिमिनल लॉज वर ऑल्सो रिवैम्ड. वाई? बिकॉज काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी गवर्नेंस में, विच आर रिलेटेड टू the colonial laws, which makes us which reminds us about the colonial laws. And our previous lady justice statue was one of them where it was blindfolded. But now if you look at it, blindfold हटा दिया गया है, open eyes है. That means that shows our chief justice of India also told this, मतलब shared about this. इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हमारा जो कानून है वो अंधा नहीं है. आर लॉ इज नॉट ब्लाइंड. प्लस इन दी हैंड्स यू विल सी देयर इज अ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये क्या दिखाता है? जस्टिस एंड फेयरनेस, द स्केल्स. एंड दिस इज द सारी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट? इंडियाज कल्चर. So basically, the new statue is clothed in sari. It has shed the blindfold and it holds scales on one hand and Indian constitution on the other hand. This basically is an attempt to remove the colonization, to remove the colonial symbols. Okay, so that is why it is important. इसीलिए ये बहुत ज्यादा important हो जाता है. तो ये आपको पढ़ना जरूरी है पेपर 2 के लिए. Coming on to the next important article. The next article is about the fourth nuclear submarine which India has launched.
अब ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे SSBNs की बात हो रही है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। इट इज ऑपरेटेड बाय ओनली USA, रशिया, चाइना, इंडिया, यूके, फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। And why? It has been launched to provide a reliable second strike capability and nuclear deterrence की बात हो रही है। तो बेसिकली इंड्योरेंस दिखाता है, ये अनलिमिटेड रेंज है इसकी, और न्यूक्लियर डेटरेंस में ये हेल्प करता है, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इंडिया की अगर हम शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात करें तो वी हैव द व्हीकल्स की अगर हम बात करें, वी हैव दी INS अरिहंत, INS अरिघाट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। देन अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ओवर हियर, अब देखो एयर पोल्यूशन एंड पोल्यूशन के ऊपर तो हर साल क्वेश्चन आता है। दिस ईयर ऑल्सो क्वेश्चन केम इन मेंस ऑन पोल्यूशन। नाउ CAQM, इट इन्वोक्स GRAP स्टेज 2 मेजर्स एज एयर क्वालिटी वर्सन्स। अब जैसे जैसे दिवाली पास आती जाएगी ना, एज सून एज वी विल रीच दिवाली, वी विल सी दैट एयर क्वालिटी विल स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। So here GRAP is Graded Response Action Plan and CAQM is Commission for Air Quality Monitoring. These are the two bodies that you need to understand. Every year there is a question on pollution. तो ये bodies important role play करती हैं. Okay. Then we have the currently going on BRICS Nation Summit. 16th BRICS Summit हो रहा है, which is hosted by Russia in Kazan. थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। काजान में ना ये डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है। व्हाट इज दिस डिक्लेरेशन? बेसिकली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पे अपने ट्विटर प्रोफाइल पर एक पोस्ट भी डाला था, वेयर अ न्यू ब्रिक्स करेंसी हैज बीन इनॉग्रेटेड, हैज बीन शेयर्ड विद द वर्ल्ड। Okay, BRICS grain exchange has been launched and this summit has created BRICS partner country category। 13 न्यू पार्टनर्स ऐड, न्यू कंट्रीज ऐड की गई हैं इसमें। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज इनिशिएटिव टू क्रिएट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। नाउ योर जॉब इज, योर होमवर्क इज that in the chat section, in the comment section, you have to tell me what exactly is international big cat alliance। IBCA क्या है? इसके ऊपर currently questions have not been asked, but because it is again very strongly in news, you can expect a 2 marker question in prelims or a 10 marker question in mains GS paper 2 from this particular topic। okay, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइजेस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सरसाइज मालाबार 2024 हैज बीन इन न्यूज। तो कौन सी कंट्रीज हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, US, इंडिया आ जाता है, राइट। एक्सरसाइज ककाडू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू रिमेंबर, हमने काफी बार पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। सो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, क्वाड नेशंस, दे बोथ पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ककाडू, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो बजट में हाईलाइट हुई थी, एंड अगेन इट इज इन न्यूज, दैट मीन्स दिस मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रीलिम्स 2025। PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री, ये बजट में काफी हाईलाइट किया। इकोनॉमिक सर्वे में आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ऑल्सो हाईलाइटेड अबाउट इट। National Education Policy 2020, the objective is to create an inclusive and nurturing environment. Why? So that it can promote the well-being and safety of the students, overall development, चाहे वो skill based development ही क्यों ना हो। इट इज इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। Now I have given you 2 homework questions, 1 weekend test in the description box of this particular video and even in the comment section। अब जो homework दिया है वो आपको comment section में solve करना ही करना है, and also tell me your scores after solving the weekend test that I am going to give in the description box। All right, thank you so much everyone, keep revising because revising current affairs is of utmost importance। We can't expect कि हम current affairs छोड़कर जाएं और हम prelims को इजीली हैंडल कर लें, बिकॉज 75% अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखें तो दैट इज करंट अफेयर बेस्ड ओनली। ओके, थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ना, वी हैव दिस email ID ask@kalam.in। आपको सिंपली इस email ID पे मेल ड्रॉप करना है अगर आपको कोई भी डाउट आता है।